السلام علیکم دوستو، اپنے یوٹیوب چینل زی این وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی کی جانب۔ اپنی طلاق کے بعد مالتی اپنے اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے گھر چلے جانا چاہتی تھی، مگر چاہنے کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ یہ بھی نہ جان سکی، لہٰذا اب اسے تنہائی کا عذاب جھیلنا تھا۔ شاید اس گھر میں پھیلی اجیت کی یادیں اور اس کی خوشبو اس کو اسی گھر میں رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگرچہ یہ اپارٹمنٹ اجیت کی ملکیت تھا، مگر طلاق کے بعد عدالتی فیصلے کے تحت یہ اپارٹمنٹ اور کچھ نقد رقم اس کو مل گئی تھی۔ وہ اکثر اس کمرے میں چلی جاتی جو کبھی اجیت کا مطالعہ کمرہ تھا اور وہاں تنہا بیٹھی رہتی۔ پہلے یہاں چاروں طرف الماریوں میں اجیت کی کتابیں اور فائلیں سجی ہوتی تھی، مگر اب یہ الماریاں بالکل خالی تھیں۔ اجیت کی کتابیں بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ اگر کچھ یہاں باقی رہ گیا تھا تو وہ صرف مالتی اور اس کے سینے میں دھڑکتی اجیت کی یادیں۔ آتش دان کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر وہ یہاں اجیت کے ساتھ بیتے لمحوں کو یاد کرتی اور آہیں بھرتی۔ گرمیوں کی ایک صبح اس کو اس کمرے کی ایک خالی الماری میں ایک مکڑی دکھائی دی۔ سفید رنگ کی دیوار پر بہت اوپر بھورے رنگ وہ ننھی سی مکڑی تھی، شاید 1 انچ سے بھی چھوٹی۔ وہ کسی عورت کے چہرے پر ایک تل کے برابر نظر آ رہی تھی۔ مالتی کو مکڑیوں سے سخت نفرت تھی۔ ان کی تیز تیز حرکت کرتی لمبی ٹانگوں سے اس کو گھن آتی تھی۔ مکڑیوں کے متعلق بات کرنے سے بھی اس کو الجھن ہوتی تھی۔ اس کمرے میں ایک مکڑی کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا کیا کرے کہ باہر لاؤنج میں بڑا فون گنگنا اٹھا۔ وہ بھگوان کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکی اور اپنے پیچھے اسٹڈی روم کا دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ ہیلو، کیسی گزر رہی ہے؟ لائن پر دوسری طرف اس کی دوست مالا تھی۔ کچھ خاص نہیں، ویسا ہی ہے، مالتی نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ کیا خیال ہے اگر آج رات تم بھی میرے ساتھ باہر چلو، مل کر کسی کا شکار کرتے ہیں؟ مالا کے لہجے میں ایک عجیب سی کھنک اور شوخی تھی۔ نہیں مالا، اب یہ میرا کام نہیں، میں یہ سب چھوڑ چکی ہوں۔ او مالتی، تم تو جوگن بنتی جا رہی ہو۔ اگر اسی طرح یہ سب کچھ اور دن چلا تو تم سب کچھ کھو دو گی۔ ابھی تمہارا دل اور تمہارا جسم جوان ہے، مگر کچھ عرصے بعد یہ سب تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تم بالکل ٹوٹ جاؤ گی، کوئی تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک صبح تم نیند سے بیدار ہوگی بلند آواز سے بھجن گاتی ہوئی۔ کیا تم یہ سب چاہتی ہو؟ مالا نے ایک لمبا لیکچر جھاڑ دیا۔ مالتی نے ایک کھوکھلا کہا لگایا۔ نہیں مالا، ایسا نہیں ہے، مگر جو تم چاہتی ہو میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تم ایسا کرو بھی تو نہیں کر سکو گی۔ مالا نے اسے تنبیہ کی۔ مجھے تھوڑا وقت اور دے دو، مالتی زچ ہو کر بولی۔ تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں۔ مالا نے اسے الٹیمیٹم دے دیا۔ مالا! مالتی تقریباً چیخ اٹھی، مگر مالا نے مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ مالتی نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے فون واپس رکھ دیا۔ مالا اس کی اچھی دوست اور ایک اچھی لڑکی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو شکاری کہتی تھی، وہ اپنی خوشی کی خاطر ہر کام کر گزرتی تھی۔ دونوں میں کالج کے زمانے سے دوستی تھی۔ مالا میں ایک کمزوری تھی اور وہ یہ کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتی تھی، اس کو ہر وقت کسی کی رفاقت درکار تھی۔ مالا فون پر اس سے لمبی لمبی باتیں کرتی رہتی تھی اور یہ لمبی فون کال مالتی کے لیے بہت مددگار بھی ثابت ہوئی تھی، خصوصاً اجیت کے اسے چھوڑ جانے کے بعد وہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ ڈرنے لگی تھی اور تو اور وہ مالا سے بھی کترانے لگی تھی۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ مالا کے رہن سہن، طور طریقوں اور چلبلے پن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مالا اس کی اکلوتی دوست تھی۔ اجیت سے طلاق کے بعد اس کے سب پرانے دوست اور رشتہ داروں نے اس کو خوب لتاڑا تھا۔ ان سب نے اس بات پر خوب ہنگامہ بھی کیا، مگر زیادہ عرصہ نہیں۔ مالتی کے وہ رشتہ دار اور دوست جو شادی شدہ تھے، ان کا رویہ عجیب ہو گیا تھا۔ مردوں کا رویہ اس کے ساتھ پرجوش تھا جو ہمہ وقت اس کی مدد کو بے قرار تھے، مگر ان کی بیویوں کا رویہ سرد تھا۔ پھر دھیرے دھیرے رشتہ داروں اور دوست احباب کی ملاقاتیں کم ہونے لگی۔ کچھ دن بعد صرف چند فون کال تک رابطہ رہ گیا۔ دن گزرتے رہے اور مالتی اپنا آپ کھوتی چلی گئی۔ اس کی جنگ تنہائی کے ساتھ تھی۔ روز بروز وہ مزید قابل رحم ہوتی چلی گئی۔ دوپہر تک وہ سوتی رہتی، جاگتی تو گھر کے خالی کمروں میں بیکار گھومتی رہتی، ٹی وی دیکھتی، سامان خریدنے کی کبھی کبھار گھر سے باہر جاتی، مگر جلد ہی واپس آ جاتی۔ وقت گزارنے کے لیے بھوک ہو یا نہ ہو بس کھاتی رہتی اور سرے شام ہی بستر میں گھس جاتی۔ وہ اس مکڑی کو تقریباً بھول چکی تھی، مگر جب ایک دن پھر وہ اسٹڈی روم میں آئی تو وہ اس کو یاد آ گئی۔ مالتی نے نادانستہ طور پر اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
वो मकड़ी एक हफ्ते बाद भी उसी पुरानी जगह पर मौजूद थी, मगर अब वो पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसका जिस्म हॉकी के गेंद के बराबर हो चुका था। मालती खौफजदा हो गई। इससे पहले उसने कभी इतनी बड़ी मकड़ी नहीं देखी थी। ये आम बात नहीं थी। ना ही उसको याद था कि कभी उसने किसी किताब में इतनी बड़ी मकड़ी के मुतालिक कुछ पढ़ा हो। मुमकिन है ये जहरीली हो, उसने सोचा। जाहिर तो ऐसा ही लगता है। मालती ने गौर से देखा तो मकड़ी हरकत करती महसूस हुई। उसका सर हिल रहा था और आंखें चमक रही थी। मालती को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। वो पलट कर दरवाजे की तरफ भागी। उसको खतरा महसूस हुआ। ये खतरनाक मकड़ी किसी भी लम्हे उस पर झपट पड़ेगी। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इस तेजी में उसको चौखट से ठोकर भी लगी। वो घुटनों के बल बाहर हॉल में जा गिरी, मगर अपनी चोट की परवाह किए बगैर उठी और पलटकर फौरन दरवाजा बंद कर दिया और उस पर अपनी पुश्त टिकाकर यूं खड़ी हो गई जैसे उसे खौफ हो कि मकड़ी जोर लगाकर दरवाजा खोल लेगी। मालती का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो बेहोश होने के करीब थी। ये मकड़ी क्या खौफनाक चीज थी। शुक्र है उसने उस पर हमला नहीं किया। मालती अपने कमरे की तरफ भागी और बोतल से शराब ग्लास में उंडेली और सोडा मिलाए बगैर घटाघट पी गई। अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही डर गई है। वो मकड़ी डरावनी तो है, तो क्या हुआ? है तो एक नन्ही सी मखलूक जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, जिसे वो अपने जूते के नीचे आसानी से मसल सकती थी। मगर मकड़ी को मारने का ख्याल उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो ये नहीं कर सकती थी। वो तो एक मक्खी मारने का भी नहीं सोच सकती थी, कहाँ ये इतनी बड़ी और खौफनाक मकड़ी। लिहाजा उसने सोचा इसके मुतालिक कुछ न किया जाए, बस प्रार्थना की जाए कि वो यहाँ से कहीं और चली जाए। उस रात मालती अपने बिस्तर में करवटें ही बदलती रही। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर साथ वाले कमरे में मौजूद मकड़ी का ख्याल आ रहा था। वो कान लगाकर मकड़ी की आहट सुनने की कोशिश करती रही थी। उसके कान हल्की सी आवाज सुनने को भी तैयार थे। बाज़ औक़ात उसे दीवार खुरचने की हल्की सी आवाज का गुमान होता। हो सकता है ये मकड़ी हरकत कर रही हो। कभी वो चौंक कर अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगती। मौसम गर्म होने के बावजूद उसने खिड़की को मजबूती से बंद कर दिया था। वो उस रास्ते से मकड़ी की आमद का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। थक हार कर न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई, मगर वो ख्वाब में भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े देखती रही। सुबह उठी तो बेख्वाबी के बायस पूरा जिस्म दुख रहा था, मगर उसकी पहली सोच ही वो मकड़ी थी। बिस्तर से उठने के बाद वो स्टडी रूम के बाहर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करती रही, मगर नदारत। हो सकता है वो मकड़ी चली गई हो। क्या वो अंदर जाकर देखे? मालती काफी देर गुमगु की कैफियत में वहाँ खड़ी सोचती रही। फिर उसने खतरे में कूदने का फैसला कर ही लिया। उसके पूरे जिस्म में तनाव की कैफियत थी। बहुत आहिस्तगी से उसने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार थी कि अगर कहीं करीब ही वो मकड़ी नजर आए तो दरवाजा फौरन वापस बंद कर दिया जाए, मगर फर्श खाली था। मालती ने इधर उधर देखा, वो मकड़ी छत पर भी नहीं थी। थोड़ी हिम्मत पैदा करके मालती ने कमरे के अंदर कदम रखा और फिर एकदम ठिठक गई। वो वहाँ थी, अपने उसी पुराने मकाम पर, मगर शायद अपनी जगह थोड़ी सी बदली थी। उसकी मोटी बालों भरी टांगे फैली हुई थी और अब ज्यादा बड़ी भी महसूस हो रही थी। मालती डरते डरते चंद कदम अंदर दाखिल हो गई। कमरे के रोशनदान से आती हुई सुबह की जर्द रोशनी में वो उसकी आंखों को चमकते हुए वाजिया तौर पर देख सकती थी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें। मालती घबरा गई। वो बेहद खौफजदा हो गई और तकरीबन बेहोश होने को थी, मगर यूं उसकी तरफ देखे जा रही थी जैसे उस मकड़ी के शहर में गिरफ्तार हो गई हो। मालती ने एक कदम और उठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ी। कमरे के रोशनदान से अंदर आने वाली सूरज की किरण सीधी उस मकड़ी पर पड़ रही थी, जो उसके रंगों को और ज्यादा नुमाया कर रही थी। उसकी टांगों का गाढ़ा बादामी और पुश्त का तेज नारंगी रंग मिलकर उस मकड़ी को उसकी अपनी हेबत के साथ साथ बेहद दिलकश और खूबसूरत बना रहे थे। सूरज की उस रोशनी में उसका सरापा निखर रहा था। आंखों के नीचे बालों भरा उभार यूं नजर आ रहा था जैसे कोई भरपूर दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स बगैर नाक के हो। ऐसा सोचकर ही मालती को झरझरी आ गई। वो एक कदम और उठा के आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उस मकड़ी ने उस पर छलांग लगा दी। मालती एकदम चीखी और पलटकर भागी। मकड़ी उस तक न पहुंच पाई और इस तार के साथ झूलती रह गई जिसका दूसरा सिरा दीवार के साथ वहां जुड़ा हुआ था जहां वो बैठी थी। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद उस मकड़ी ने तेजी के साथ दीवार से नीचे उतरना शुरू कर दिया। मालती ये सूरत हाल देखकर भागती हुई कमरे से बाहर भागी और अपने अकब में दरवाजा सख्ती से बंद कर दिया। मालती कांपती लरजती गिरती पड़ती अपने कमरे में पहुंची। वो अपने आप को अपनी इस बेवकूफी पर कोस रही थी कि वो क्यों आगे बढ़ी। अगर वो मकड़ी जहरीली हो तो उसका जहर मालती को हलाक भी कर सकता था। वो बेदम होकर एक सोफे पर गिर गई और सोचने लगी कि उस मकड़ी के खिलाफ किससे मदद तलब करे।
कुछ सोचकर उसने टेलीफोन डायरेक्टरी उठा ली और किसी इमदादी इदारे का नंबर तलाश करने लगी। सफ़े पलटते पलटते वो रुक गई। अपने तमाम खौफ के बावजूद उसका दिल नहीं चाह रहा था कि इस कदर खूबसूरत मकड़ी को यूं मार दिया जाए। उसको जानवरों से वाकई प्यार था। खूबसूरती की तो वो दीवानी थी, हत्ता कि दूसरी औरतों के बरक्स उसे खूबसूरत चूहे भी पसंद थे। और अगर अजीत मुखालफत न करता तो वाकई घर में पालतू जानवर रख लेती, मगर अजीत ने उसे रोक दिया था। ये तो नाइंसाफी होती कि उस मकड़ी को मार दिया जाए, खुसूसन जब वो इतनी दिलकश थी। इस मसले का एक सादा सा हल ये भी था कि अब स्टडी रूम का दरवाजा ही ना खोला जाए। जब तक मकड़ी को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद वहाँ से कहीं और चली जाएगी। दूसरे दिन मालती ने माला से फोन पर बात की और उस शाम को उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गई। उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जिंदगी से भरपूर जानती थी कि कहाँ जाना है और किससे मिलना है, मर्दों से सामना कैसे करना है और उनको कैसे अपने इशारों पर नचाना है। उनको लुभाना और सूरत हाल के मुताबिक उनके साथ बर्ताव करना माला खूब जानती थी। मालती उसके साथ अपने आप को महफूज तस्वर करती थी। मालती और माला दोनों मुंबई के शहर के बाशिंदों के उस तबके से ताल्लुक रखती थी जिनका हर कोई रिश्तेदार होता है और कोई भी नहीं होता। दोनों को अपनी माओं के नाम तो मालूम, मगर वल्दियत कभी किसी ने ना बताई, ना उन्होंने कभी अपने अपने बाप की शक्ल देखी। उनकी कम्युनिटी में सब लड़कियों का भी यही हाल था। उनके हाथ दिन सोकर और रातें जागती थी। उनमें से माला उन चंद लड़कियों में से थी जो अपने मखसूस इलाके से बाहर निकली और अपने कारोबार को एक नया रंग दे दिया। वो हर रोज बंद संवर कर साहिल समंदर या किसी बड़े होटल के आसपास पहुंच जाती, किसी अनजान मासूम और सादा लो दिखाई देने वाले गैर मुल्की सयाह को निशाने पर रखती और उससे जा टकराती। कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करती, कुछ अदाओं के जाल फेंकती और उसके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करती। कुछ शॉपिंग करती और हो सकता तो कुछ नगद डॉलर भी बटोर लेती। अगर कोई ज्यादा ही मालदार होता तो जब तक उसकी जेब हल्की न हो जाती, माला उसको अपने साथ अपने अपार्टमेंट पर ले आती। माला का ये कारोबार बहुत कामयाब और मुनाफा बख्श साबित हुआ। वो उसको मर्दों का शिकार का नाम भी देती थी। कुछ अरसे बाद उसने मालती को भी अपने साथ मिला लिया। अब वो दोनों मिलकर ये काम करती थी। न खाने की फिक्र न पैसे का मसला, अखराजात भी दूसरे ही बर्दाश्त करते। रफ्ता रफ्ता दोनों ने गैर मुल्की सयाहों के साथ मुल्की दौलतमंदों को भी शिकार करना शुरू कर दिया। उसी शिकार के दौरान मालती की मुलाकात अजीत से हुई। वो एक दिलकश और जाज़बे नजर नौजवान था। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सेल्स मैनेजर था। वो मालती पर मन मिटा और मालती उस पर फिदा हो गई। पहली नजर में मालती को अजीत काबिल कबूल लगा। अजीत भी उस पर मन मिटा और अपने खानदान से छुप कर उसने मालती से शादी कर ली और मुंबई के एक पोश इलाके में उसको एक फ्लैट भी ले दिया। मगर अब अजीत के जाने के बाद एक बार फिर न चाहते हुए भी दोबारा माला का साथ देने को तैयार हो गई थी। दोनों के लिए शिकार का पहला दिन कामयाब था, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन भी दोहराया। उन्होंने इकट्ठे 5 दिन गुजारे। वो एक नई फिल्म का आखिरी शो देखने भी गईं। हर रोज नया शिकार। माला के घर पर रात गए मर्दों के साथ हल्ला गुल्ला और पार्टी, शराब के जाम उंडेले जाते। एक अजब हंगामा बदमस्ती बर्पा होता। माला जल्द ही अपने साथी के साथ अपने बेडरूम में गायब हो जाती, लेकिन मालती नहीं। वो ये काम कर तो रही थी मगर चंद हदूद के साथ। अब किसी के साथ ताल्लुक को वो बगैर मोहब्बत के कायम करने को तैयार न थी। वो इस प्यार को महसूस करना चाहती थी जो प्यार उसको अजीत दे रहा था, मगर कैसे और किससे। उसको जो धचका लगा था, जो धोखा अजीत ने लिया था, उसके बाद वो किसी पर भी भरोसा करने को तैयार न थी। 5 दिन बाद जब मालती घर लौटी तो पहला काम यही किया कि फौरन स्टडी का दरवाजा खोला और मकड़ी को चेक किया। उसे उम्मीद थी कि वो मकड़ी अब तक कहीं और जा चुकी होगी। उसने एक दिन माला के सामने भी उस मकड़ी का जिक्र किया था, मगर उसने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था और सिर्फ ये मशवरा देकर टाल दिया कि पूरे घर में कीड़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए स्प्रे करवा लो। जब वो घर वापस लौटी और मुताले के कमरे में गई तो उसने देखा कि ये एक हैरत अंगेज तौर पर वो मकड़ी अपनी जगह मौजूद थी, कहीं गई नहीं थी, मगर अब वो अपनी ही एक तार के सहारे लटक रही थी और मुर्दा मालूम हो रही थी। वो तार छत के साथ मुंसलिक थी। मालती पहले तो उसको अपनी जगह देखकर डर गई, मगर फिर जब उसने देखा कि वो मकड़ी बेहिस्सो हरकत है तो उसने सुकून की सांस ली, मगर दिल में अफसोस की लहर भी उभरी। वो समझ न सकी कि ये कैसे हुआ, मगर ये सब हो चुका था। कई लम्हे तक वो उदास खड़ी उसको तार के सहारे झूलते तकती रही। यूं झूलते हुए वो अजीब मगर बेहद हसीन नजर आ रही थी। मालती के दिल में रहम का जज्बा उभर रहा था कि बेचारी मकड़ी तन्हा इस कमरे में रह गई और भूख के हाथों मारी गई। तब अचानक उसकी नजर किसी गैर मामूली चीज पर पड़ी। वो दूर कमरे के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालती लाशऊरी तौर पर उसके करीब चली गई। वो सफेद ऊन का छोटा सा गुच्छा था। मालती ने उसको अपने पाँव की नोक से छुआ तो उसको मतली होने लगी, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि वो एक मुर्दा चूहे की खाल का टुकड़ा था।
वो मुड़कर खौफ के आलम में मकड़ी की तरफ देखने लगी। यकीनन वो चूहा मकड़ी का शिकार बना था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा सा बालों भरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता दीवार से नमूदार होकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने एकदम चीख मारी और खौफ के आलम में घबराकर बाहर को दौड़ी। वो इतनी खौफजदा थी कि अपने पीछे कमरे का दरवाजा बंद करना भी भूल गई। उसको सिर्फ इतना याद रहा कि उस कमरे से बाहर आफियत है। जब उसको एहसास हुआ तो मुड़ी और कांपते हाथों से दरवाजा बंद करने लगी। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जब तक उसने शराब के चंद घूंट पी न लिए उसके जिस्म की कपकपाहट दूर न हुई। ये खौफनाक चीज आई कहाँ से और उसकी जिसामत इतनी बड़ी कैसे हो गई? जो वो उस मकड़ी के मुतालिक सोचती उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। इतना बड़ा जानदार तो उसने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा था। उसने सोचा शायद ये उसका तखय्युल हो, महज उसका ख्याल हो, उसका खौफ हो जो मुजस्सम हो गया हो। उस मकड़ी को करीब से देखना चाहती थी। ये ख्याल ही उसको लर्जा देने के लिए काफी था कि ये उसका महज ख्याल नहीं था। वो मकड़ी वाकई बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। मगर ये आई कहाँ से? वो खौफ से जम गई। अगर ये एक से ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा? ये तो सारे अपार्टमेंट में हो सकती हैं। उसने घबरा कर इधर उधर नजर दौड़ाई। खुशकिस्मती से उसके कमरे में कुछ ज्यादा और भारी फर्नीचर नहीं था। अगर अपार्टमेंट में और भी मकड़ियां थी तो उन मकड़ियों की छुपने के लिए चंद ही मकामात थे। मालती को बहुत ज्यादा फर्नीचर पसंद नहीं था। कमरे में चमड़े की सिर्फ एक काउच थी। उसके साथ मैचिंग आर्म चेयर, टीवी सेट और चंद आराइशी चीजें, वो भी ज्यादातर दीवारों पर आवेजा थी। मालती अपनी सांस रोके कमरे में इधर उधर एहतियात से देखती रही। उसको अंदाजा था कि वो इस चीज को कुछ ज्यादा ही महसूस कर रही है। अगर वो महकमा हैवानात को फोन करे तो वो आकर इसको इस मोजी मकड़ी से निजात दिला सकते थे। मगर अपने तमाम तर खौफ के बावजूद मालती ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो उससे बचना तो चाहती थी मगर कुदरत के उस हसीन शाहकार को मारना भी नहीं चाहती थी। इन सोचों के दरमियान उसने घूम फिर कर इस बात की तसल्ली कर ली कि उसका कमरा बिल्कुल महफूज है और वहाँ कोई मकड़ी मौजूद नहीं है। झाड़ू बदस्त उसने सारे कमरे का जायजा लिया और दूसरे कमरों का भी मुआयना कर लिया मगर कुछ न मिला। फिर शायद इस मोजी से निजात मिल जाए। अगली शाम वो माला के साथ एक बार फिर तैयार होकर अपनी शिकारी मुहिम पर बाहर निकली तो वो उसको मकड़ी के मुतालिक बताना चाहती थी मगर उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। वो शहर के सबसे मशहूर डिस्को क्लब गई। दोनों निहायत हिजान अंगेज लिबास में मलबूस थी। माला अपने लिबास को जंगी लिबास का नाम दिया करती थी। डिस्को में माला ने मालती का तारुफ जैक से करवाया। वो एक गैर मुल्की बिजनेसमैन था और गाहे बगाहे कारोबार के सिलसिले में हिंदुस्तान आता रहता था मगर जब भी आता माला से जरूर मिलता। जैक ने जब मुसाफा करने के लिए मालती का हाथ अपने हाथ में थामा तो अजीत से अपनी तलाक के बाद पहली दफा मालती को अपने दिल में एक मीठी सी हलचल महसूस हुई। वो उसकी तरफ तौसीफी निगाहों से देख रहा था। वो बहुत जाज़बे नजर और पुरकशिश मर्द था। भूरी घनी मूछें, तवील कामत, जोशीला और बातूनी अपनायत भरी आंखों में प्यार की तपिश महसूस हो रही थी। उससे मिलकर मालती मकड़ी के मुतालिक सब भूल गई और अगली सुबह तक वो उसके शहर में खोई रही। रात गए तक वो डिस्को में पार्टी में मशगूल रहे। उसके बाद वो लोग माला के घर आ गए। माला तो अपने बेडरूम में चली गई मगर जैक वहीं मालती के पास बैठ गया। मालती पूरी तरह उसके शहर में गिरफ्तार हो चुकी थी। फिर जब जैक ने पेशरफ्त शुरू की तो मालती ने कुछ मज़ाहमत न की। उस पर मोहब्बत का खुमार छा रहा था। अगली सुबह जब वो शादा और फरहां बेदार हुई तो जैक पहले ही जा चुका था। वो उसके लिए एक तहरीर छोड़ गया था कि शाम को डिस्को में मुलाकात होगी। बड़ी बेसब्री से मालती ने शाम का इंतजार किया। शाम होते ही वो डिस्को पहुंच गई। वो जानती थी कि जैक की जिंदगी की चमक से भरपूर नजरों के सामने वो ढह जाएगी, बिल्कुल एक शिकार की मानिंद। वो शिकार करने आई थी मगर खुद शिकार हो चली थी। वो रात तक इंतजार करती रही मगर जैक नजर न आया। झिझकते हुए माला से पूछा तो उसने लापरवाह अंदाज में बताया कि जैक की तो आज दोपहर की फ्लाइट थी, वो तो वापस अपने मुल्क चला गया। मालती का सारा इत्मीनान और एतबार एकदम फिर से ढह गया। एक और मर्द उसके जज्बात को लूट कर चला गया। वो शिकस्त खोरदा कदमों के साथ घर लौट आई। माला ने लाख रोका मगर वो तन्हाई में फूट फूट कर रोना चाहती थी। अगस्त की वो एक गर्म शाम थी। आसमान पर शफक छाई हुई थी। पूरा अपार्टमेंट गंदा हो रहा था। तकरीबन 2 हफ्ते से नजरअंदाज गंदी प्लेटें किचन में बिखरी पड़ी थी। फ्रिज खाली था और कमरे में बासी चीजों की सड़ांध फैली हुई थी। वो बेदम होकर काउच पर लेट गई। वो थकी हुई थी। वो सोचने लगी, एक और मर्द, एक और नाकामी, ये कैसे होगा? क्या वो इसी तरह लुटती रहे या फिर उनको शिकार करे? वो फट पड़ी। आंखों से आंसू के रेले बहने लगे। जिंदगी इतनी बेरहम कैसे बन गई है? वो जिंदगी से जो कुछ चाहती थी वो कुछ खास तो नहीं था, बस एक आम सी ख्वाहिश, प्यार करने वाला खामद और बच्चे, एक घर की ख्वाहिश। ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है। क्या उसको बहुत कुछ कहा जा सकता है? ओह अजीत! वो सिसक पड़ी। उसके होंठ भिंच गए मगर फिर वो जब्त करने लगी और अपने आप से कहने लगी, नहीं,
जो गुजर गया वो उस पर कभी नहीं रोएगी। अजीत ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था और वो उसके मुतालिक सोचना भी नहीं चाहती थी, मगर यादें उभर आती थी। बेकार माजरतें, बेमानी इत्तफाकात। अजीत पुरसुकून और रवां बात करता था। वो दलील के साथ बात करने का हुनर जानता था, मगर वजाहतें ज्यादा थी जिनको वो कभी जानना नहीं चाहती थी। हत्ता कि अब भी वो हालात के उन टुकड़ों को जोड़ने से शर्माती और गुरेजा थी जो मोहब्बत भरे बन सकते थे। अजीत और जैक का किरदार बहुत ज्यादा मुशाहबत अख्तियार कर गया था। मालती पर यासियत छाती जा रही थी। फिर अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी, टप टप, जैसे बारिश के कतरे खिड़की के शीशे पर बरस रहे हों। ये आवाज हॉल से आ रही थी। मालती ने चौंक कर आंखें खोली और एक साया हरकत करता नजर आया। खौफ के मारे उसके होंठों से हल्की सी चीख निकल गई। वो मकड़ी से पहले ही बहुत खौफजदा थी, जो रोज बरोज बड़ी होती चली जा रही थी। अब तो उसका हुजूम खाने की एक प्लेट से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती उसकी तरफ आती जा रही थी। मालती को महसूस हुआ कि वो मकड़ी उस पर हमला करने वाली है। मालती की सांस सीने के अंदर रुकने लगी। वो बेयारो मददगार थी और खतरा करीब आता जा रहा था। उसके पास मकड़ियों के मुतालिक नामुकम्मल और मबहम मालूमात थी, वो भी उसको किताबों और फिल्मों से हासिल हुई थी। मकड़ी के बालों भरी टांगे उसको अपनी गिरफ्त में लेने को बेताब थी। मालती दुआएं करने लगी कि ये खून आशाम जानवर रुक जाए, मगर नहीं। वो करीब आती चली गई। फिर वो काउच के पाए के करीब आकर रुक गई जिस पर मालती बैठी हुई थी। काउच के नीचे आकर अब वो मकड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। मालती ने अपना जिस्म सख्ती से काउच के कुशन में छुपा लिया। उसकी सांस रुकने लगी। फिर अचानक वो दोबारा नजर आ गई। अब वो काउच के पाए पर चढ़ रही थी। खौफनाक मकड़ी काउच के बाजू पर आई, थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर नीचे उतरने लगी। मालती तकरीबन बेहोश ही हो गई थी। उसने अपनी दोनों टांगे समेट कर अपने पाँव काउच के ऊपर रख लिए थे। मकड़ी अब नीचे कुशन पर आकर उसके पाँव पर चढ़ी और फिर धीरे धीरे वो उसकी टांग पर आगे बढ़ने लगी। खौफ की लहर मालती को अपने घेरे में ले रही थी। वो खौफ के आखिरी नुक्ते पर थी, मगर उसको एक बात जरूर याद थी कि हरकत नहीं करनी, बस बेहिस्सो हरकत अपनी जगह जमी रहो। दिमाग उसको समझा रहा था। मालती अपनी जगह जमी उस मकड़ी को अपने घुटने पर आते देखती रही। मालती के दोनों घुटनों पर उस मकड़ी के पाँव थे। मालती उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख सकती थी। मकड़ी की चमकदार आंखें उसको वाज़िया नजर आ रही थी। पहली दफा मालती को एहसास हुआ कि मकड़ी की दो आंखों के नीचे बालों के दो गुच्छे थे जो उसके चेहरे को खौफनाक बना रहे थे। उनके नीचे दो नुकीले दरांती नुमा दांत थे। उसका चेहरा मुकम्मल शैतानी था। मालती का जहन डूबने लगा। हर लम्हे उसको खौफ रहा कि अभी ये नुकीले दांत उसके जिस्म में, उसके गोश्त में खुप जाएंगे। वो दर्द की लहर की मुंतजिर थी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। उसके पेट पर पहुंचकर मकड़ी रुक गई, अपना सर उठाया और उसकी आंखों में झांका। मालती बेहोश हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। सांस लेने से पेट हिल रहा था और वो कोशिश करके अपनी सांस रोक रही थी। दम साधे बैठी थी। आंखें बंद कर लेना चाहती थी, मगर कर ना सकी। यूं जैसे वो उन दो आंखों के सामने मिस्मरिज्म का शिकार हो चुकी हो। वो गहरी सब्ज झील जैसी सहर अंगेज आंखें, वो जब भी पलक झपकती आंखें ब्राउन हो जाती। मकड़ी की 8 टांगों के अलावा 2 छोटे छोटे दांत भी थे जो छोटे छोटे हाथों की मानिंद बेताबी से हरकत कर रहे थे। अचानक उस मकड़ी ने अपनी अगली दोनों टांगें उठाई और उनको एंटीना की मानिंद खड़ा कर दिया। वो दाएं बाएं हौले हौले हरकत करने लगी। मालती नीम बेहोशी की हालत में मकड़ी की इस बेताबाना हरकत को नीम बाज आंखों से देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो और वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। आखिरकार मकड़ी ने अपनी लहराती हुई टांगे नीचे की और मालती के पेट पर से वापस नीचे उतरना शुरू कर दिया। मालती अपने रेशमी लिबास की वजह से जो जिस्म पर चिपका हुआ था, मकड़ी के पेट की गोलाई और उसके जिस्म की गर्मी को महसूस कर सकती थी। मालती ने हरकत किए बगैर एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर इस बात को महसूस करते ही मकड़ी की हरकत भी रुक गई। अब वो हिल नहीं रही थी। वो जहाँ थी वहीं बैठ गई। उसकी चमकदार आंखें उस पर जमी हुई थीं। धीरे धीरे मालती का खौफ कुछ कम होना शुरू हुआ। खौफनाक मकड़ी किसी जारहाना मूड में नजर नहीं आ रही थी, मगर वो क्या चाहती थी? उसके डरावने दिमाग में क्या चल रहा था? सोचो, क्या मकड़ियों के भी दिमाग होते हैं? कुछ देर बाद मकड़ी ने अपनी दोनों टांगे फिर ऊपर उठाई, दोबारा उनको लहराया और पीछे हटना शुरू कर दिया। मालती के गालों पर आंसू बहने लगे। अब वो साफ महसूस कर सकती थी कि वो मकड़ी उसकी टांगों से होकर नीचे फर्श पर उतर रही है। मालती बेहिस्सो हरकत उस वक्त का इंतजार करती रही जब तक वो मकड़ी स्टडी के दरवाजे में वापस गायब ना हो जाए। जो ही वो नजर से ओझल हुई, मालती जस्त लगाकर अपनी जगह से उठी और भागकर कमरे का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि कमरे की खिड़कियां भी झुंझुना उठी।
وہ پاگل ہو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ اس کو اپنے جسم سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ جہاں جہاں اس مکڑی نے اپنا جسم لگایا تھا وہاں وہاں اس کو بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پورے جسم کو دھو ڈالنا چاہتی تھی، اچھی طرح نہانا چاہتی تھی، مگر یہاں نہیں۔ وہ یہاں سے فوراً کہیں نکل جانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے مالا کو فون کیا، پانی نہ آنے کا بہانہ کر کے اس کے گھر آنے کی اجازت لی، بھاگ کر ٹیکسی پکڑی اور مالا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنی دوست سے اس مکڑی کے متعلق زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پھر سے اس کا مذاق اڑائے گی۔ مالا کے باتھ روم میں اس نے کافی وقت لگایا، خوب مل مل کر نہائی، پورے جسم سے مکڑی کے لیس کو رگڑ رگڑ کر اتارنے کی کوشش کرتی رہی۔ جو کچھ اس پر گزرا تھا اس کو یاد کر کے وہ ابھی بھی لرز رہی تھی۔ اب بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، اس افرید کو اس کے گھر سے جانا ہوگا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ کل صبح جاگنے کے بعد پہلا کام محکمہ حیوانیات کو فون کرنا ہی ہوگا کہ وہ آ کر اس مکڑی کو اس کے گھر سے دور کر دیں، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اپنی بزدلی یا رحم دلی کے سبب وہ اس خوبصورت اور حسین دلکش جانور کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ مستقل بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2 دنوں رات اس پر پریشان رہی۔ راتیں بھیانک تھیں کیونکہ وہ اپنے انچاہے مہمان کی حرکت دیواروں پر سن سکتی تھی۔ شاید وہ بے چین و بے تاب تھی کیونکہ اسٹڈی میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس مکڑی کو زیادہ خوراک مل سکتی۔ تیسرے دن مالتی بازار جا کر مکڑیوں پر لکھی ایک کتاب خرید لائی۔ اس میں ان 2 قامت افریتوں کے متعلق کچھ درج نہیں تھا، مگر اس کو اتنا علم ضرور ہو گیا کہ مکڑیوں کی کھال اور ان کی اگلی ٹانگوں کی حرکت محبت، پیار اور جذبوں کا اظہار کرتی ہیں۔ اس سے مالتی کو اندازہ ہوا کہ بظاہر یہ افریت بھی اس کی دوست بننا چاہتی تھی۔ اس انکشاف نے اس کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس طرح بند کمرے میں تو یہ مکڑی بھوک سے مر جائے گی، جو زیادہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ چوتھے دن مالتی رہ نہ سکی، وہ دوبارہ اس مکڑی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید وہ مکڑی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں سے کہیں چلی گئی ہو یا پھر مر گئی ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کے دل کو چین نہیں تھا، مگر وہ مطمئن تھی کہ یہ افریت اسے نقصان نہیں دے گا کیونکہ اب وہ اس گزشتہ شام کی طرح آسان نوالا ثابت نہیں ہوگی۔ مالتی نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا، ڈرتے ڈرتے اندر قدم دھرا۔ مکڑی کمرے کے ایک کونے میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ شاید مر چکی ہے، تب اچانک اس مکڑی نے اپنے اگلے پاؤں اٹھائے اور انہیں مدہوشی کے عالم میں ادھر ادھر لہرایا۔ اس کی یہ ادا بہت دل نواز تھی، جیسے وہ مالتی کو کمرے میں خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ مالتی بے دلی سے مسکرا دی۔ اسے مکڑی کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ ہوا، افسوس بھی ہو رہا تھا کیونکہ اب وہ پہلے کے مقابلے میں پسمردہ نظر آ رہی تھی۔ مالتی اس کی خوراک کے متعلق سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو کھانے کے لیے چوہا دے سکتی تھی، مگر یہ بہت کراہیت آمیز تھا۔ اس کا تو یہ مطلب تھا کہ ایک ظلم کو دوسرے ظلم سے ختم کیا جائے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر کیا کرے؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ پنیر کا ایک ٹکڑا اس نے دیکھا تو ایک دم ایک خیال بجلی کی طرح ذہن میں کوندا۔ وہ یہ پنیر بطور خوراک چوہوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتی تھی۔ یہ مناسب معلوم ہوتا تھا۔ اس طرح وہ مکڑی چوہوں کو خود ہی شکار کر سکتی تھی تو کر لے، اس طرح وہ ان کو کھانے کی حقدار تھی۔ اگر ایسا نہ کیا تو خود ہی مر جائے گی۔ فطرت کا یہی اصول ہے، وہی زندہ ہے جو طاقتور ہے۔ مالتی نے پنیر کے ٹکڑے کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا اور ان کو اسٹڈی میں جا بجا پھینک دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ مالا کی طرف چلی گئی۔ آج شام ان کی 2 کینیڈین سیاحوں کے ساتھ ڈیٹ تھی۔ ہوٹل میں سر شام ہی ان مردوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا اور وہ دوبارہ مالا کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ دونوں غصے کے عالم میں شراب پیتی رہیں، اپنے شکاروں کو کوستی رہیں۔ وہ رات بہت گرم تھی، اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا اندھیرے کی سانسوں میں اتر رہا تھا۔ مالا جتنا کماتی تھی سب خرچ کر دیتی تھی۔ اس کی پہلی ترجیح اپنا جسم اور پیٹ تھا۔ زیادہ رقم وہ سجنے سنورنے میں خرچ کرتی، باقی جو بچتا اس کے پیٹ میں اتر جاتا۔ زبان کا جذبہ اس کے لیے بہت اہم تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنے گھر کو بنانے سجانے میں اتنا تردد نہیں کیا تھا۔ سادہ سا گھر تھا کیونکہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہفتے میں چند راتیں ہی گزارتی تھی، باقی وقت تو اس کا اپنے شکاروں کے ساتھ باہر ہی کہیں ہوٹلوں میں گزر جاتا۔ اس لیے اس نے کوئی ایئر کنڈیشنر کا انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ آج تو اس کو مجبوراً کسی شکار کے بغیر گھر میں وقت گزارنا پڑ رہا تھا، جہاں گرمی بھی تھی اور غصہ بھی۔ اس لیے مالا نے اپنی ساڑی اتار پھینکی اور وہ صرف اپنے سیاہ رنگ کے زیر جاموں میں ملبوس تھی۔ مالتی نے دیکھا وہ ابھی تک اسی طرح دلکش اور پرکشش تھی۔ جب اپنے پاؤں پسار کر کاؤچ پر لیٹی تو اس کے ریشمی سیاہ بال اس کے بیضوی چہرے پر پھیل گئے۔ وہ اپنی لمبی ٹانگیں اور بازو کاہلی کے انداز میں ہلا رہی تھی۔ وہ بے حد دلکش اور پرکشش نظر آ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ مالا اسی طرح کاہلی کے انداز میں چھت کو گھورتے ہوئے مالتی سے مخاطب ہوئی۔ پہلے بھی اسی طرح ایک رات گزری تھی جب میں بالکل تنہا اور اکیلی تھی۔ تم بھی اس وقت اجیت کو پا کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تنہائی میں میرا دم گھٹتا
है। इस हालत में हमेशा मेरा दिल चाहता है कि खिड़की से या छत से छलांग लगा दूं, कूद जाऊं। बेवकूफ मत बनो, मालती ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। ये सच है, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तन्हाई से नफरत है। मुझे मर्दों का साथ अच्छा लगता है। ये जिन्स खुदगर्ज सही, मतलबी सही, उनकी बातें झूठी सही, मगर उनकी बातों में नशा होता है, मजा होता है। उनकी जुबान से अपनी तारीफ सुनो तो खुमार छाने लगता है। बावजूद इसके पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मगर मुझे ये नशा लग गया है। मर्द मीठा जहर होते हैं, चाहे वो तुम्हें नुकसान ही क्यों न दे। मालती बोली। उसको एकदम जैक का सर्द रवैया और खुदगर्जी याद आ गई थी। तुम उनको ऐसा ना करने दो। मर्द चालाक और खुदगर्ज सही, मगर मासूम होते हैं, जानते बूझते धोखा खाते हैं और समझते ये हैं कि धोखा दे रहे हैं। तुम कैसे उनको रोक सकती हो? मालती ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए पूछा। आसान, बिल्कुल आसान। तुम उनसे मोहब्बत ना करो, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह ना दो। प्यार, मोहब्बत, लगाव को संजीदगी से मत लो। उसको आम नज़ला जुकाम जैसा ही समझ लो। बीमारी दूर करने वाली कुछ कड़वी गोलियां खाओ, बिस्तर में एक आध दिन आराम करो और निजात पा जाओ, भूल जाओ। मुझे तो इन बातों का इल्म न था, मालती ने जवाब दिया। अब जान जाओ, खसूसन इसके बाद जो अजीत ने तुमसे किया। माला का लहजा नासहाना था। तुम उसका जिक्र ना करो। अगर कोई चीज मुकम्मल ना हो सके तो उसको खत्म कर देना अच्छा है। मालती के लहजे में कड़वाहट घुल गई थी, जैसे मालती ने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा हो। वो मालती को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। इसका मतलब? कुछ देर बाद माला बोली। माला के इस रद्दे अमल से मालती कंफ्यूज हो गई। वो बुखला गई और हकलाने लगी। हाँ, वो हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अजीत एक अच्छा पति था, वफादार। ये तो सिर्फ उसका बिजनेस था जो हम दोनों के बीच आ गया। और मैं और मालती, तुम भी ना। माला अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली। मालती चुप हो गई। थोड़ी देर बाद दोबारा बोली। माला, कुछ गलत कहा मैंने? जब माला ने अपना चेहरा दोबारा उसकी तरफ मोड़ा तो उसकी आंखों में पानी झिलमिला रहा था। तुम कहना चाहती हो कि तुम कुछ नहीं जानती? उसकी आवाज रुंध गई। क्या नहीं जानती? मालती का लहजा इस्तेफामिया था। माला ने कोई जवाब ना दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली और सर को हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली। कुछ नहीं, भूल जाओ इसे। मालती ने महसूस किया कि उसका दिल डूब रहा है। प्लीज माला, क्या तुम अजीत के मुतालिक कुछ जानती हो? अगर जानती हो तो बताओ, बोलो, मैं जानना चाहती हूँ। कोई ऐसी बात जो मैं उसकी बीवी होने के बावजूद जान ना पाई और तुम जानती हो। माला बेदिली से मुस्कुराई। हो सकता है तुम्हें पता भी हो, लेकिन तुम्हें ये बात बताने वाली मैं अकेली नहीं होंगी। इस शहर की हर तीसरी औरत और लड़की तुम्हें यही बात बताएगी। उसने एक हल्का सा कहकहा लगाकर जवाब दिया। और मैं ये तवक्का नहीं कर सकती कि तुम खुद उस बात का पता नहीं चला सकती। प्लीज माला, मुझे बताओ। मालती का लहजा गड़बड़ा देने वाला था। नहीं हनी, तुम मुझे बुरा समझोगी और मैं ऐसा पसंद नहीं करूंगी। इसके साथ ही माला काउच से उठी, मालती के करीब आई और उसकी पेशानी पर एक गर्म पोसा दिया। मैं सोने जा रही हूँ, उसने कहा, और फिर उससे पहले कि मालती कोई बात करती वो जल्दी से बाहर निकल गई। अपनी सोचों में गलता मालती को वो वहां छोड़ गई, जो खुद फरामोशी के आलम में कमरे के फर्श को घूरे जा रही थी। वो जिंदगी के पजल के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी। उसके जहन पर उदासी छा चुकी थी। वो यादों की टूटी जंजीर की कड़ियां जोड़ रही थी। उसे याद आ रहा था कि वो वक्त जब रात के खाने पर अजीत घर नहीं पहुंचा। वो शामें जो मालती ने अजीत के इंतजार में टीवी की स्क्रीन के सामने गुजारी। वो अमूमन हर शाम अपना बेहतरीन लिबास पहनती, इस उम्मीद पर कि वो वादे के मुताबिक वक्त पर घर आ जाएगा और दोनों मिलकर कहीं बाहर जाएंगे। आंखों में जागती तन्हा बिस्तर में वो तवील बेरंग रातें। कई वीकेंड अजीत के बिजनेस की नजर हुए। बिजनेस? वो जहरीली अंदाज में हंसी। कारोबार? वो शायद इसके बिजनेस का हिस्सा था। जब एक शाम मालती काफी इंतजार के बाद उसको बिना फोन किए उसके दफ्तर पहुंच गई। उस दिन अजीत ने उसके साथ साथ साहले समंदर पर जाने का वादा किया था, मगर मालती ने उसको दफ्तर में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ जिस हालत में देखा, उसने मालती को बेकल कर दिया। यहीं से दोनों की राहें जुदा होना शुरू हो गईं। उसने कितना इंतजार किया, शुरू से आखिर तक, जो कभी खत्म ना हुआ। वो उठी और कमरे की खुली खिड़की में जा खड़ी हुई। बाहर सारा शहर रात की तारीकी में डूबा जा रहा था। इमारतें रोशनियों की भूल भुलैयों की तरह सीधी खड़ी थी। उन इमारतों की रोशन खिड़कियां खुशी और बंद खिड़कियां गम को जाहिर करती हैं। मालती की सोचें भटकने लगी। लानत हो तुम पर, अजीत भटनागर। मालती बड़बड़ाई और फिर उसने धड़ाम से खिड़की बंद कर दी। अपनी पेशानी खिड़की के शीशे पर टिका दी। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वो आंसू साफ करते हुए सोचने लगी कि वो इस काबिल नहीं था कि उसके लिए इतने कीमती आंसू खर्च किए जाएं। वो खड़ी खाली नजरों से चांद को बादलों से आंख मचोली खेलते देखती रही, जब वो मकड़ी अचानक चुपके से उसकी सोचों में दाखिल हो गई और वो बेख्तियार अजीत को भूलकर उस मकड़ी के मुतालिक सोचने लगी। उसे मुकम्मल उम्मीद
امید تھی کہ اب تک اس نے کوئی چوہا شکار کر لیا ہوگا۔ وہ مسکرائی، مڑی اور مالا کے گیسٹ روم میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ دوسری صبح مالا کا موڈ بہت عجیب تھا، مگر جب مالتی نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے صبح بخیر کہا تو دونوں کھلکھلا اٹھی اور مسکرانے لگی اور دوبارہ سے جن سے مخالف کو فتح کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگی۔ دونوں دوبارہ سے اس جنگ کے لیے تیار تھیں۔ غلطی صرف وہ کرو جو تمہارے نقصان میں نہ ہو، ہنی، مالا بولی۔ کسی کو پسند ضرور کرو مگر ٹوٹ کر کبھی نہ چاہو، اس طرح تم خود کمزور ہو جاؤ گی۔ یہ رات بھی پہلی راتوں کی طرح تھی۔ دونوں اپنے جنگی لباس میں ملبوس حملہ کرنے کو بالکل تیار تھیں جب ان کی ملاقات مائیکل فلنٹ ہوسٹن سے ہوئی۔ وہ جمہوریہ چیک سے اس ملک کے تفریحی دورے پر آیا تھا۔ دراز قد تھا، کسی ایتھلیٹ کی مانند گٹھا ہوا جسم، گہرے سیاہ بال، پر اعتماد چہرہ، 30 برس کے لگ بھگ عمر۔ وہ کسی مغربی فلم کے ویلن کی طرح مگر پروقار اور وجیح نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ مالتی پر پوری طرح مر مٹا تھا، کیونکہ جب تک وہ ان کے پاس بیٹھا رہا اس کی نظریں مالتی کے جسم کا طواف ہی کرتی رہیں۔ مالتی بھی اس ساری صورتحال کو سمجھ اور دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی کہ صرف اپنے شکاری کو شکار کے ساتھ کوئی ہمدردی یا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی اور اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک دفعہ ڈیٹ پر گئی مگر کبھی اس کو ایک حد سے آگے نہ آنے دیا۔ کھایا پیا، اس کی جیب ہلکی کی اور اپنا پرس وزنی کیا، مگر کبھی اپنے اپارٹمنٹ یا کسی ہوٹل میں مدعو نہیں کیا۔ آخرکار چوتھی دفعہ مالا کی نصیحت پر اس نے دعوت نامہ اپنے ہونٹوں سے باہر آنے ہی دیا، کیونکہ مالا بھی ایک شکار کر چکی تھی اور اس کو قابو کرنے کے بعد اب وہ اس کا خون چوسنے کو تیار بیٹھی تھی۔ لہٰذا اس نے مالتی کو بھی آخری وار کا اشارہ کر دیا۔ مائیکل تو جیسے پہلے سے ہی اس دعوت نامے کے لیے بے چین اور منتظر بیٹھا تھا، فوراً قبول کر لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مالتی سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ خود بھی نروس ہو رہی تھی۔ تم بے وقوف ہو، اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تم یہاں بھی بے وقوف بن جاؤ گی۔ وہ کچھ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ رات کو جب مائیکل اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچا اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ کاؤچ پر بیٹھے تو مالتی کا ذہن بالکل خالی تھا۔ مائیکل فلنٹ کے ہاتھ جب آوارہ ہونا شروع ہوئے تو ایک گھنٹی مالتی کے دماغ کے اندر بجنے لگی، مگر وہ اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ مائیکل فلنٹ بھی پیش قدمی میں محتاط تھا اور مالتی بھی اپنے اندر سمٹتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مائیکل نے اپنا تحمل کا دامن چھوڑ دیا۔ وہ اٹھا، ریکارڈ پلیئر کی طرف گیا اور اس کی آواز اونچی کر دی۔ کمرے میں ستار کی دلکش دھنیں اپنا سحر پھیلانے لگی۔ وہ پلٹا اور آ کر دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بالکل چپ چاپ تھا، شاید مالتی کے بولنے کا منتظر تھا، مگر وہ صرف مسکرائی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک نازک بکری کی مانند تھی، اس لیے اس نے پوری طرح ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مالتی کو مائیکل کے چہرے کے تاثرات بدلتے محسوس ہوئے، کیونکہ اب اس کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے آثار تھے۔ اس کے ہونٹ بھنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ مالتی کچھ پوچھ پاتی اس کے ہونٹوں سے یکلخت ایک دردناک چیخ ابھری۔ مالتی حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا تھا۔ پھر وہ لڑک کر اس کے اوپر گرا کہ مالتی اس کے بوجھ تلے دب گئی اور دونوں پھسل کر کاؤچ سے نیچے آ گرے۔ مالتی اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے دب گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ہلکے سے اوپر اٹھایا اور دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کو مائیکل فلنٹ کی کمر پر اس افریت مکڑی کا سایہ نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی مالتی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس مکڑی کے نوکیلے خوفناک دانت پوری طرح مائیکل کی کمر میں پیوست تھے۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ ہوش میں آئی تو ابھی تک مائیکل کے بے جان جسم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، مگر مکڑی اب غائب تھی۔ وہ شاید واپس جا چکی تھی۔ ریکارڈ پلیئر بھی بند ہو چکا تھا۔ مالتی نے دھکیل کر مائیکل کے جسم کو ایک طرف کیا اور اپنے آپ کو اس کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ گھٹنوں کے بل اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، مکڑی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ مائیکل فلنٹ پر ایک نظر ڈالی۔ وہ عجیب نظر آ رہا تھا۔ چہرے کی رنگت غیر معمولی طور پر پیلی پڑ چکی تھی۔ اس کے گال پوری طرح پچک چکے تھے اور ان پر جھریاں پڑ گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور ان میں سے سفیدی جھلک رہی تھی۔ مجموعی طور پر وہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ مالتی نے اپنا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ وہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بے حس و حرکت۔ وہ یقینی طور پر مر چکا تھا۔ مالتی کانپ اٹھی اور اپنے گھٹنوں کے بل لاش کے پاس بیٹھ کر رہ گئی۔ اس کی سوچیں اور دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ کئی لمحے بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر وہ اس حالت سے باہر آئی اور اچھل کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ فوری طور پر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینی تھی۔ جب وہ تیزی سے فون کے قریب پہنچی تو اچانک رک گئی اور سوچنے لگی کہ پولیس کو کیا بتائے گی، کیا وضاحت پیش کرے گی۔ یہی کہ ایک افریت مکڑی نے میرے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ وہ لوگ کیسے اس بات کا یقین کریں گے؟ وہ کیا سوچیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس والے شاید اسی کو قتل کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ او میرے بھگوان! اس نے گھبرا کر فون کا ہینڈ سیٹ دوبارہ کریڈل پر رکھ دیا۔
तहम्मुल से मालती उसने अपने आप को समझाया, इस सूरत हाल पर सोचो, परेशानी में कोई गलत कदम मत उठाओ। मालती कुछ देर सोचती रही, फिर कुछ सोचकर माइकल के लिबास को टटोला, उसकी जेबों की तलाशी ली। वहां से उसको चंद कागजात मिल गए। उनसे हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। उन कागजात से जाहिर हुआ कि मरने वाले का नाम माइकल फ्लिंट नहीं था और न ही वो जमहूरिया चेक से आया था, बल्कि उसका नाम व्लादिमीर था और वो रूस का रहने वाला था। मालती को उस पर गुस्सा आने लगा। उसके जहन में फौरी आया कि शायद किसी खुफिया एजेंसी का आदमी था और किसी मिशन पर हिंदुस्तान में आया था। मालती के दिमाग में गुस्से का जज्बा उभरने लगा। वो उस फ्राडिये के लिए जेल जाना नहीं चाहती थी। वो कमरे में चक्कर लगाने लगी। परेशानी के आलम में उंगली में पहनी अंगूठी उतार ली और उसको अपने हाथ में घुमाने और रगड़ने लगी। वो चक्कर लगाने के दौरान में कुछ सोचती भी जा रही थी, क्योंकि वो उस लाश से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहती थी। मगर कैसे? क्या दरिया में फेंक दे? हाँ, दरिया बेहतर जगह हो सकती है, मगर ये मामला कैसे छुपा रह सकता है? ओह, क्या करूं? वो बड़बड़ाई। बेदम और बेबस होकर अपने बेड पर गिर गई। पुलिस वाले या उसके साथी उसको तलाश कर ही लेंगे। मायूसी के बायस उसकी आंखें भर आईं। माइकल का मुर्दा जिस्म कमर के बल पड़ा था। उसकी टांगें टखने के पास जुड़ी हुई थीं और सर गैर फितरी अंदाज में पीछे को मुड़ा हुआ था। होंठे के गोशों से स्याह मादा बह रहा था। क्या लाशों के साथ ऐसा ही होता है? क्या ये जिंदगी के इख्तिताम की निशानी है? वो बेख्तियार होकर सोचने लगी। तब अचानक उसे याद आया कि मकड़ी ने उसे काटा था और दांतों के जरिए अपना जहरीला मादा उसके जिस्म में दाखिल किया था। शायद उसकी जहर की वजह से उसके अंदरूनी अज़ा गल और पिघल रहे थे। ये सोचकर ही मालती को उबकाई आने लगी, जिसे उसने बमुश्किल रोका। वो दोबारा उठी और फोन के पास गई। वो पुलिस को ना सही मगर माला को तो फोन कर ही सकती थी। नहीं, ये बेहतर नहीं है। यकीनन माला नाराज होगी, क्योंकि मालती ने अफरेत मकड़ी के इस कदर बड़ा होने के मुतालिक माला को कुछ नहीं बताया था। भगवान, क्या जादू था! मालती ने अपने आप को एक चौबी डंडे से मुसल्ला किया। स्टडी का दरवाजा चौपट खुला था और अंदर की तारीकी से अजीब नागवार बू उभर रही थी, कुछ मीठी कुछ नमकीन, सड़े हुए गोश्त की बदबू। जब मालती ने कमरे में रोशनी जलाई तो उसने देखा कि मकड़ी अपने मखसूस कोने में दुबकी बैठी थी। मालती को देखते ही फौरन उसने अपने अगले पांव उठाकर और उन्हें लहराकर उसको खुशामदीद कहा, उसका खैर मकदम किया। मकड़ी का कद अब पहले से भी काफी बड़ा हो चुका था। उसका जिस्म एक दरमियाने साइज के कुत्ते के कद के जितना बड़ा हो चुका था। उसकी टांगें एक छोटे टहर जितने कतर में भी फैल चुकी थी। बज़ाहिर वो नरम मिजाज और पुरसुकून नजर आ रही थी। उसकी पुरानी खाल उसके जिस्म पर लटकी हुई थी और वो खुद एक तार के सहारे जो छत से जुड़ी थी लटकी हुई आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। माला को खौफ की एक सर्द लहर अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती महसूस हुई, मगर ये सिर्फ एक लम्हा था। न जाने क्यों उसको यकीन था कि मकड़ी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फर्श पर जा बजा मुर्दा चूहों की खाल के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता मालती आगे बढ़ी और आतिशदान के करीब रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो खौफजदा थी। उसको यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। खौफ की चादर उसको अपनी लपेट में ले रही थी। वो माइकल फ्लिंट उर्फ व्लादिमीर के मुतालिक सोच रही थी। उसने कभी मौत को इस तरह महसूस ही नहीं किया था। वो अब सबक सीख गई थी। माला दुरुस्त कहती थी, दर्द की कीमत आंसुओं से ज्यादा नहीं, मगर अब तो वो वक्त गुजर गया। अचानक उसकी नजर आतिशदान के ऊपर लगे आईने पर पड़ी। उसमें उसको अपने सरापा का अक्स नजर आया। हसीनो मासूम चेहरा, आंखों में लहराती मासूमियत के साथ कुछ मगरूरियत और कीना परवरी, यूं जैसे आतिशदान की आग बुझाने के बाद बाकी बची हुई राख। आईने में झांकते हुए उसने मकड़ी को हौले हौले अपनी तरफ बढ़ने की आवाज सुनी। मालती ने देखा तो वो उसके करीब आकर खड़ी हुई थी। खड़े होने पर उसका कद तकरीबन 2 फुट ऊंचा था। अब वो कई टांगों वाला बुलडॉग नजर आ रही थी। रोशनी में उसके बादामी बाल धाती नजारा पेश कर रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी गोल गेंदों की मानिंद नजर आ रही थी और यूं चमक रही थीं जैसे सितारे। उसकी आंखों की गहरी सब्ज पुतलियां मालती के चेहरे पर जमी हुई थीं। बिना सोचे समझे मालती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मकड़ी के सर को प्यार से सहलाने लगी। उसका जिस्म हैरान कुन तौर पर रेशम की मानिंद नम था। अब मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ, उसने लरसती मुस्कुराहट से मकड़ी को मुखातिब किया। जवाबन मकड़ी ने अपना सर हौले से यूं दाएं बाएं लहराया जैसे उसकी बात को अच्छी तरह समझ गई हो। उसी लम्हे माला को भी समझ आ गया कि अब साथ वाले कमरे में पड़ी लाश के साथ क्या सलूक करना है। आसाब शिकन 2 दिन गुजर गए। इस दौरान मालती ने एक लम्हे के लिए भी अपने घर को छोड़ना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर में पड़ी उस मर्द की लाश या मकड़ी को देख ले। लिहाजा वो घर पर ही रही। सिवाय चंद जरूरियात के वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गई। खुशकिस्मती से माला भी शायद अपने किसी काम में मसरूफ थी, लिहाजा उसका भी उधर चक्कर नहीं लगा। उस दौरान में मकड़ी ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया और लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके निजाम हजम ने पूरी लाश हत्ता के हड्डियों तक को घुला दिया।
एक हफ्ते बाद व्लादिमीर का पूरा जिस्म एक छोटी सी ढेरी से भी ज्यादा नन्हा मुन्ना रह गया। अब मालती ने उस ढेरी को एक कपड़े में लपेटा और उसको कूड़े के थैले में रख कर कचरा कुंडी के एक कोने में फेंक आई। उसके सारे कागजात जला दिए, बटवा घड़ी और इसी तरह की दूसरी चीजें गटर में बहा दी। अपने और व्लादिमीर के मुतालिक हर निशान को मिटा दिया। जहाँ जहाँ उसके उंगलियों के निशानात थे वो भी रगड़ कर साफ कर दिए। अब उसको परेशान होने की जरूरत ना थी, क्योंकि अब तक कोई भी उसके मुतालिक दरियाफ्त करने न आया था। अब वो अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार थी, हत्ता कि वो इसको भी अपना फायदा ही ख्याल कर रही थी। माला उसके साथ न थी, शायद वो खुद कहीं किसी शिकार में मसरूफ थी और उसको हर मामले से खुद निपटना पड़ रहा था। बरसों बाद उसको पहली दफा एहसास हो रहा था कि वो अपनी किस्मत और हाल की खुद मालिक है। प्रकाश की उम्र 19 साल थी। वो एक प्यारा नौजवान नजर आता था जो हर मामले में ना तजुर्बाकार था, मगर जोश उसके अंग अंग में भरा पड़ा था। मालती ने उसको हौसला अफजा मुस्कुराहट के साथ देखा। ये उसका पहला खुद मुख्तार शिकार था जिसे वो अपने साथ अपार्टमेंट लेकर आई थी। अब मुझे प्यास महसूस हो रही है, एक गिलास ब्रांडी तो ला दो, मालती ने नशीली आंखों से प्रकाश को देखते हुए दिलरुबा अंदाज में कहा। जो तुम कहो। प्रकाश उससे ज्यादा जोशीला नजर आ रहा था। साथ वाले कमरे में बोतल रखी है, मालती ने स्टडी की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रकाश उछलकर अपनी जगह से उठा और स्टडी की तरफ चल दिया। जब मालती ने उसे जाते हुए देखा तो उसका जी चाहा कि उसको वापस बुला ले। वो एक प्यारा नौजवान था और मालती को उसकी जवानी पर तरस आने लगा, मगर अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसकी पालतू मकड़ी भूखी थी और उसको जल्द खुराक दरकार थी। मालती उसके कदमों की आहट सुन रही थी। स्टडी का दरवाजा खुला और बिजली का स्विच ऑन होने की आवाज उभरी। पहले प्रकाश की घुटी घुटी चीख सुनाई दी, फिर धप से उसके फर्श पर गिरने की आवाज उभरी। मालती ने एक गहरी सांस ली और सुकून के आलम में अपनी टांगें फैलाई और सफेद सिल्क की चादर अपने जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेट ली। उसको गनूदगी महसूस हो रही थी, वो सोना चाहती थी। जब वो दोबारा जागी तो मकड़ी की 8 रुएदार टांगों का लम्स उसको अपने जिस्म पर महसूस हुआ। मकड़ी बेड के पास खड़ी थी, उसकी अगली टांगें लहरा रही थीं और खून आशाम दांतों से खून टपक रहा था। मालती ने गहरी सांस ली, उसको झरझरी आ गई। हाथ बढ़ाकर उसने मकड़ी के सर पर थपकी दी। अब जाओ और खाने से लुत्फ अंदोज हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मकड़ी वापस मुड़ी और दोबारा कमरे से निकल गई। मालती के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होने लगी। अब उसे पुराने जख्म भूलकर अजीत को किसी दिन अपने अपार्टमेंट आने और रात गुजारने की दावत देना होगी, वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी।